ارشاد عابد صاحب جو آج کی فصل کی آخری کڑی ہیں اور ان سے بڑی توقعات ہیں اردو زبان میں میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ آئیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحیم و کریم اور بڑا ہی مہربان ہے۔ کہاں سے ابتدا کیجیے بڑی مشکل ہے لوگوں، کہاں سے ابتدا کیجیے بڑی مشکل ہے لوگوں، کہانی عمر بھر کی اور لمحہ مختصر سا ہے۔ تعزیتی جلسوں میں سارے محاسن بیان نہیں کیے جا سکتے اور یہ موقع بھی نہیں۔ تعزیت کا مطلب ہوتا ہے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار، اپنے غم کا اظہار اور جانے والوں کے تعلق سے مختصر طور پر چند محاسن کا ذکر۔ چونکہ تعزیت کے لیے وقت مقرر ہے، اس کے بعد آپ ایک شام شبیر ربوی کے نام منائیں، ان کے نام سے کوئی جلسہ منسوخ کر دیں، ان کے نام سے کوئی ایوارڈ منسوخ کر دیں، ان کے نام سے کوئی مجلہ لائے، یہ کام کیے جا سکتے ہیں۔ اور اس دن آپ کو تفصیل سے ٹاپک وائز گفتگو کرنی چاہیے۔ کوئی صاحب غزلیہ شاعری پہ بحث کر لیں، کوئی نظم گوئی سے اپنی باتیں شروع کریں، کوئی ان کے انٹرویوز کا جائزہ لے، وغیرہ وغیرہ۔ بہت ساری کوششیں ہیں کہ بڑی شخصیتیں اکٹھی نہیں ہوتی۔ شخصیت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کئی پردے ہوتے ہیں، ورنہ شخصیت نہیں بنے گی۔ وہ شخص ہے، شخص سے شخصیت کا ایک لمبا سفر ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ فرد سے افراد بننے کا جو عمل ہے وہی عمل شخص سے شخصیت بنا۔ تو سال میں 2 مرتبہ انگلیوں پہ گنے جانے والے چند شخص کو عید اور بقرعید کے دن خاص طور پر فون کرتا ہے۔ سب سے پہلا فون استاذ محترم قیصر شمیم صاحب کی خدمت میں ہوتی ہے جب تک وہ حیات سے، اور دوسرا فون حضرت شبیر ربوی کے نام ہوگا۔ خدا گواہ ہے کبھی یہ سلسلہ بند نہیں ہوا۔ ان کی طبیعت کی ناشادگی کی جس دن خبر ملی، ہم اور بڑے بھائی مشتاق ہاشمی حاضر، دونوں بچے بیٹھے ہیں سمیع اور کریم، گواہی دے گئے۔ ہوا میں تو بات نہیں۔ ادبی تعلق الگ ہے، شخصی تعلق میرا الگ ہے، اور ادبی نظریاتی اختلاف کو میں کبھی بھی ذاتی اختلاف پہ ترجیح نہیں دیتا ہوں۔ ادب کا یہ تقاضا نہیں، ادب جوڑنے کا نام ہے، توڑنے کا نہیں، اور جو ادب توڑ دے وہ ادب نہیں۔ آج میں شرمندہ ہوں اپنے آپ سے کہ ڈاکٹر صاحب کو جو مرتبہ ملنا چاہیے تھا وہ ہم لوگ نہیں دے سکے۔ یہ تلخ حقیقت ہے۔ تعلق ربر کی گیند ہے، جتنی زور سے دیوار پہ ماریں گے اتنی زور سے واپس آئے گی وہ گیند۔ اگر واپس نہیں آ رہی تو وہ دیوار کا قصور ہے۔ سوال تو اٹھے گا کہ دیوار نے واپس کیوں نہیں کیا اس گیند کو صحیح طور پر۔ تو ہمارے معاشرے کو اگر ایک شخص نے شروع سے آج تک دیا ہے تو معاشرے نے واپس کیوں نہیں کیا؟ یہ عرض بنگالہ اتنی بے حس کیوں ہے؟ ان کا مجموعہ نہیں آیا تو صرف انہیں پر ذاتی طور پر اختلاف ہے تھوڑی۔ ہماری تنظیمیں کیا کر رہی ہیں؟ ان تنظیموں کا کام تھا کہ ان کی چیزوں کو یکجا کرنا، ان سے رجوع کرنا۔ کہ آپ اتنے دنوں سے لکھ رہے ہیں، آپ کا مجموعہ کیوں نہیں آیا؟ آپ ایسے ایسے لوگوں کو چھاپ رہے ہیں جو متشائر ہے، ان کا مجموعہ لا کر انہیں ایوارڈ دے رہے ہیں، اپنے بازوؤں پر ڈالتے ہیں متشائر کو، اور جو زندگی پر خون پھونک کر دیا اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ یہ چند لوگ بیٹھے یہی معاشرے میں ہیں، شبیر ربوی کے چاہنے والے۔
जो जनाजे में लोग शरीक थे उतने लोग जानते हैं शब्बीर रजवी को। मैं भी मशीनी जिंदगी गुजार रहा हूं। मसरूफियतें किसके साथ नहीं है साहब? किसके साथ नहीं है मसरूफियत? इसका क्या मतलब है कि मरना जीना छोड़ देंगे, मुआशरे को छोड़ देंगे, किसी की खुशी में शामिल नहीं होंगे, किसी के गम में शामिल नहीं होंगे, तो फिर जीना बेकार है आपका। इसका मतलब यह है कि आप सोसाइटी से कट ऑफ हैं, और जब सोसाइटी से कट ऑफ है तो सोसाइटी से आप वापस मांगने की उम्मीद ना रखें। अदब सिर्फ देने का नाम नहीं है। अदब में यह भी देखा जाता है कि हमने जो कुछ अदब को दिया है उसका रिफ्लेक्ट क्या है, उसका असर क्या है। बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, क्यों रो रहा है? जवाब तलाश करते हैं आप, उसके बाद उसे वो चीज देते हैं जिसके लिए वो बच्चा रो रहा होता है। और अगर बच्चा चुप हो गया तो आप सेटिस्फाई होते कि नहीं होते? इसका मतलब है कि हमने बच्चे को खुश कर दिया। तो एक शायर, एक अदीब जो खून थूक रहा है जिंदगी भर, उसे आपने क्या किया? कुछ नहीं। मैंने इसी मजलिस पे कभी शेर पढ़ा था, शेर गोई पे ना इतराओ के इससे हासिल, चंद लम्हात की इज्जत के सिवा कुछ भी नहीं। आप जब तक जिंदा हैं, जब तक मजलिस में हैं, आप बहुत बड़े हैं। मजलिस से आपका रिश्ता खत्म, सब दरिया बुर्द हो जाता है। और ये आज का नहीं है, मेरी बात है, गालिब ने भी कहा था हमारे शेर हैं अब सिर्फ दिल लगी के असर, खुलाई योगदा के अर्ज़े हुनर में खाक नहीं। तो गोशे बहुत से हैं, बहुत देर तक बोला जा सकता है और यकीनन बोलना चाहिए, लेकिन ताज़ियत का मतलब तो ये नहीं होता है कि सिर्फ हम अपने ताल्लुकात को गिनवाते हैं कि 35 साल से मैं उनको जानता हूं। जानते होंगे, माशरे का वो हिस्सा है। शहर और समाज तो हमारी आंख है ना माशरे का। सवाल ये है कि वहां कितनी बेहिस क्यों हो गई जिसने अपनी आंख को देखा था, जिसने इन आंखों से अपने माशरे को देखा, वो क्या कर रही है? कैसा सख्त दिल है आपका? क्या आपकी नजर उस पर नहीं गई कि इतने दिनों से शायरी करने वाले शख्स की कोई किताब नहीं है सिवाय बच्चों का रिश्ते, जिसने बच्चों के खिलौने के तौर पर नज़्में पेश की, जिसे आज बच्चा अजबर करके सुनाता है। तारीख एक हाथ से नहीं बचती है, सोचना पड़ेगा। हमारा माशरा बहुत पस्ती की तरफ जाने की बहुत सारी वजहों में एक वजह यह भी है कि हमने अदब को सिर्फ तमाशा बनाया हुआ है, सिर्फ तफरीह के लिए इस्तेमाल किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। किताबें आएंगी, हम इंतजार करेंगे, शब्बीर साहब मुझे दे ही देंगे, खरीदेंगे क्यों? होता भी वही है भाई। लेकिन बंगला वालों में जरा जाकर देख लीजिए, दिगर जबान वालों में जाकर देख लीजिए, उनके यहाँ एक बजट होता है कि हमें क्या क्या करना है। बहरहाल मैं इख्तिलाफी गुफ्तगू करने के लिए खड़ा नहीं हुआ था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ उनके दोनों फर्जंदों से कि बेटा आप कभी भी अपने आप को तन्हा न महसूस करेंगे। हम ये दावा नहीं कर सकते कि जो गुजर गए हम उनके बदल के तौर पर होंगे, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। माँ बाप का बदल कोई नहीं। यहां तक कि आपका कोई भाई भी रुखसत होता है, उसका बदल में दुनिया नहीं दे सकती। कोई बहन रुखसत होती है, उसका भी दुनिया कोई बदल नहीं दे सकती। उससे अच्छा कोई मिल सकता है, उससे खराब कोई मिल सकता है, लेकिन अल्लाह की वहदानियत का यह कायल होना पड़ेगा आपको कि एक ही जैसे आज़ा बनाने के बावजूद हमें मुख्तलिफ बनाया, और उसकी कुदरत में ये शामिल है कि उसने तमाम लोगों को इंफरादी सलाहियतें दी। हम बहुत आसानी से कहते हैं तो खदा पूर्ण हो जाएगा, हो ही जाएगा। तालिबे खस्ता के बगैर कौन सा काम बनता है? उनसे अच्छा मिलेगा, उनके जैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके हिस्से की जिंदगी सिर्फ उनकी थी, हमारे हिस्से की जिंदगी सिर्फ हमारी। यकसानियत हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। लिख लीजिए,
ایک सूता ऊपर जाएगा एक सूता नीचे आएगा, लेकिन कभी बराबरी का सब मामला नहीं हो सकता। इसलिए कि हमें अल्लाह ने जुदागाना सलाहियतों का मालिक बनाकर दुनिया में भेजा है और यही हमारी पहचान बनती है। अगर ये पहचान न बनती तो सब एक जैसा शेर करते, सब एक जैसा पेन बनाते, तमाम कंपनी वाले एक ही पेन बनाते, क्या जरूरत थी अलग अलग पेन बनाने? सारे मोबाइल वाले एक ही तरह का मोबाइल बनाते, क्या जरूरत है अलग अलग बनाने? नहीं, अलग ही चाहिए, इंफरादियत चाहिए। दुनिया इंफरादियत है। जमाना चाहता है वक्त हर शय का बराबर हो, घटा देता है आला को, बढ़ा देता है अल्लाह। तो मैं अहले खाना से हमदर्दी का इजहार करता हूँ, खास तौर पर समी से और कलीब से, उनके घर के तमाम अफराद से, उनकी बेटियों से, उनकी अहलिया से, और खास तौर पर शबीर साहब का जो अदबी विरसा है इस वक्त इम्तियाज अजहर के तौर पर, मैं उनसे भी जुड़ा हुआ हूँ। घंटों गुफ्तगू होती है, रात गए तक गुफ्तगू होती है। उनसे भी मैं कहता हूँ कि आप तन्हा जरूर हो गए, अकेला नहीं, तन्हा हुए, अकेला नहीं, लोग हैं। शाना से शाना मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। पीछे मुड़कर देखिए, इब्राहिम साहब खड़े हुए, उन्हें देखिए शबीर साहब का नजर आता है कि नहीं आता उनके? वही खुशबू के अंदर महसूस करेंगे आप, चूंकि वो दोनों ही राजदार की तरह एक साथ हैं। जामी साहब को देखिए, शब रोज की रिफाकत अदा करने की शख्सियत बैठी है यहाँ। हम लोग क्या है? कुछ नहीं। हमको इस वजह से आते थे कि इन बुजुर्गों की दुआएं मिलती थी। हमने अशकावी को देखा, हमने शरफ गाजीपुरी को देखा, हमने मुतरिब बलियारी को देखा, हमने नूर भारती को यहाँ देखा, हमने फैसल शमीम को यहाँ देखा, हमने अलकामा शिबली को यहाँ देखा। किसका जिक्र करेंगे? अब लोग ये बोलेंगे कि वो चले गए तो कला पूरा गए, नहीं हुआ। फैसल शमीम है, शब्बीर और रवि ही है। वो अपने हिस्से की जिंदगी गुजार कर गए, अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा के गए, आप अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगे। उनके जैसा नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। अगर ऐसा होता तो सारे चेहरे एक जैसे बनते, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके चेहरे पर भी वही तमाम चीजें हैं जो मेरे चेहरे पर है, लेकिन बावजूद इसके हम आपसे नहीं मिलते। आपकी शनाख्त आपकी है, मेरी शनाख्त मेरी है। वही सिलसिला सलाहियतों के सिलसिले में भी है। तमाम लोग जुदागाना सलाहियत रखते हैं। मैं बार बार कहता हूं, उनसे बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, उनसे बहुत पस्त मिलेंगे, उन जैसा नहीं मिलेंगे। मैंने उसे दिन दो कथा कहा था और इम्तियाज अजहर को हमने सेंड कर दिया। दूसरे दिन अखबार में वो चीजें शाया भी हो गई, उससे का नहीं पढ़ा। उसके बाद का जो मामला था, उस दिन नशिस्तें हुई, शेरी मंजरनामे पर लोगों ने अपनी अपनी तख्लीकात पेश की। वो उनका कलेजा था भाई, इससे शिकायत कीजिएगा, रहने दीजिए। लेकिन उन्हें याद रखना होगा कि वो भी इस मरहले से गुजरेंगे। अगर उस दिन इंशाअल्लाह कोई मुशाहिदा पड़ेगा तो फिर नागवार हो जाएगा। देखिए, मैं मुख्तसर सी बात कर रहा हूँ। शाह मकबूल अहमद साहब को जानते हैं, हजरत फैसल शमीम को उस्ताद, मैंने कभी मुलाकात उनसे नहीं की थी। मुस्लिम इंस्टीट्यूट में बैठा हूँ, हजरत नाजिम सुल्तानपुरी तशरीफ लाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम यहाँ बैठे हो, सुनो फला तारीख को बज़्म अहबाब का जलसा है, मैं मुंतज़मिन हूँ, मेजबान मैं हूँ, मैं अपनी तरफ से तुम्हें मदऊ कर रहा हूँ, तुम्हें आना है। उन्हें भी मैं उस्ताद की तरह मानता था। मैंने कहा जी इंशाअल्लाह जरूर शिरकत होगी। कहाँ होगी? यूनानी पढ़ी करता हूँ, मैं आ जाऊंगा। ठीक उसी तारीख से एक रात कबल हजरत शाह मकबूल साहब का इंतकाल होता है। ज़ोहर में मिट्टी का ऐलान होता है। बाजू में स्कूल है, इफ्तार साहब जानते हैं, मैंने कहा सुना, उसी आस पास में रहते थे वो। फला साहब मेरे जहन में फौरन स्ट्राइक किया, अक्सर जिक्र करते थे और उस्ताद कहते थे। इसका मतलब है कि हजरत फैसल शमीम को उस्ताद हो। मैं सर को अपने फोन किया, सर ऐसी तो खबर मिली, हाँ बेटा ऐसी बात सही है। मैंने कहा ठीक है, ज़ोहर के वक्त मिलती मैं हाजिर हूँ। स्कूल से निकल कर मैं चला गया और शाम के वक्त वो प्रोग्राम होना है जो नाजिम सुल्तानपुरी ने जिसकी दावत दी है मुझे नहीं दिया।
हफ्ते 10 दिन गुजरे, फिर मुलाकात हो गई। हजरत नाजिम सुल्तानपुरी से शिकायत की रजा ने कहा, क्या बेटा तुम बड़े शायर हो गए, क्यों तुम फलां तारीख को आए नहीं? बस उनके जलसे मेजबान जैसे से मैंने बुलाया था। मैंने उनसे शिकायत की, सर झुका के सिर्फ इतना कहा कि सर दिन के वक्त किसी उस्ताद को कांधे पर उठाकर जनाजे में जाऊं, रात में शेर पढ़ूं, नहीं होगा मुझसे। उनकी आंख से आंसू टपका और कलेजे लगाकर बोला कि नाजिम सुल्तानपुरी भी मरेगा तो मैं तवक्को करूंगा कि शायद आजम मुशायरा नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ा सबक तुमने दिया बेटा मुझको। तो ये तकाजा है मेरे भाई, अगर नहीं मानते हैं मत मानिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो मान रहे हैं उन पर तनकीद मत कीजिए कि आप गलत बोल रहे हैं। वो समाज का सिर्फ एक वाहिद शख्स नहीं किया है, समाज का नुमाइंदा किया है, हमारे माशरे का, हमारे मगरबी बंगाल के सरजमीन का अदब का नुमाइंदा किया है। आज बहुत लग कर तो लोग बोलते हो 35 साल से ताल्लुक थे, उसी का सिला आपने दिया। पाउल और फेर में बार बार हमारे ब्रादर को कहता हूं, मनसब को मैं बहुत ऊपर रखता हूं, बहुत ऊपर, एक इमामत को और एक अदब को बहुत ऊपर रखता हूं। इमामत में भी अय्यारी मक्कारी नहीं चलेगी और अदब में भी अय्यारी मक्कारी नहीं चलेगी, चूंकि आने वाली नस्लें हमारी लिखी हुई चीजों को पढ़कर बड़ी होंगी। अगर वहीं से आपने अय्यारी मक्कारी उन बच्चों को सिखला दिया तो आज वही हश्र होगा जो हमारी मजलिसों में आज हो रहा है कि कोई माइकला सुनने पर हमारा शोरा आते हैं, अपने टर्म्स तक बैठते हैं कि कब मुझे मौका मिलेगा मैं गजल सुनाऊंगा, वक्त नहीं है मेरे पास, अम्मी बीमार है, 4 गजलें पढ़ेंगे ताकि आपका भी वक्त चला जाए। अनाउंसर बोल रहा होता है, एक एक गजल पर इत्तेफाक कीजिए, बहुत वक्त है। अच्छा एक रुबाई कम से कम सुन लीजिए, चंद कतार कम से कम सुन लीजिए, अपनी तो भड़ास निकाल दिए भाई, उसके बाद वाला का क्या हाल होगा? बॉल तो महदूद है ना, T20 तो हो गया। ये सारी चीजों पे नजर रखने की जरूरत है। अगर नहीं रखिएगा तो शब्बीर अब्दुल्ली जैसा बहुत सा शायर जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हमारा माशरा ऐसे अच्छे लोगों से ताली होते 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 बहुत डाउनफॉल का शिकार हो जाएगा, क्योंकि अब जो नस्लें आ रही हैं उनके अंदर वो अदब का माजरा नहीं है। बहुत माजरत के साथ मैं कह रहा हूं, बहुत माजरत के साथ। वक्त गुजरा है कि अगर हजरत फैसल शबी मजलिस सब में बैठे हुए हैं मुशाहिदे में, इंशाअल्लाह जो पीछे तो जानू बैठा हुआ और उस वक्त तक बैठा हुआ जब तक उस्ताद पीछे मुड़ के ना देखे और बोले बेटा ठीक से बैठो, वो अदब सीखा है। और अभी ऐलान नहीं होता है, लोग अगली सब में बैठते हैं ताकि सेल्फी ले सके और दूसरे दिन अखबार में और सोशल मीडिया पे डाल सके कि मैंने फला जगह मुशायरा पढ़ा है। ये भी अदब सुन लीजिए आप, हम बुजुर्गों के कदमों में बैठकर अदब हासिल कर रहे हैं और कोई बुजुर्गों को ठेल कर हासिल कर रहा है। बहुत फर्क है और आने वाले दिनों में मजीद फर्क बढ़ेगा, ये मैं लिख कर दे रहा हूं, क्योंकि अब उस तरह की तरबियत नहीं हो रही। ले देकर एक तहरीक अदब, ले देकर 2-4 और तंजीमें नजर आती हैं जहां इस तरह की गुफ्तगू खुलकर की जाती है, वरना लोग चाय पीते हैं, पान खाते हैं, शेर सुनाते हैं, रुखसत हो गए और जाकर दूसरे दिन ऐलान करके कि मैंने 4 गजलें फला तारीख को सुनाई। शेर में कौन सा ऐब है किसी को मालूम नहीं, सब में वाह, तो वो तो मेरा रवि का शिकार होगा ना भाई। लेकिन यहाँ कम से कम वो सिलसिला जब तक मैं आता रहता था मैंने देखा, मैंने भी सीखा, बहुत कुछ सीखा है। इतराफ करने में मुझे कोई झिझक नहीं है और झिझक इन मानों में नहीं है कि मैं सिर्फ तकदीरी तौर पर इतराफ कर रहा हूं, मैंने तहरीरी तौर पर इतराफ किया है, वो भी ऐसे दौर में, ऐसे पुरफतन दौर में जब एक उस्ताद के लिए शागिर्द अपने फेस पर मजमुए में जिक्र नहीं कर रहा है कि वो किसका शागिर्द है, उस दौर से मैं गुजर रहा हूं। लेकिन मेरा मजमुआ उठाकर देखिए, महमूद राही का जिक्र है,
میرا مجموعہ اٹھا کر دیکھیے، حضرت شبیر ابری کا ذکر ہے کہ ان لوگوں سے میں نے استفادہ کیا ہے، میں نے آپ کو بھیجا تھا نشاندہی کر کے. کون سا ہے بھائی؟ بڑوں سے میں نے سیکھا ہے، یہ میرا تمغہ ہے، یہ میرا میڈل ہے، یہی تو میرا میڈل ہے کہ میں نے ایسی ایسی شخصیتوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا اس کی سعادت حاصل کی. اور اب کا شاعر بولتا ہے کہ میں استاد میرے کو ہے ہی نہیں. اچھا، جس وقت اسے پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اس نے خود ہی شاگردوں میں پوری ٹولی بنا دی، تو کہاں جائے گا ادب؟ تھوڑی سی اس پر غور کیجیے، کوشش کیجیے کہ شبیر ابری کی تعلیم کو، ان کے ادب کو، ان کے کارناموں کو نئی نسل تک پہنچائیں. وہ کتابی شکل میں ہو، تحریری شکل میں ہو، تقریری شکل میں ہو، لیکن زندہ رکھیے کہ یہی زندگی ہماری اور آپ کی شناخت بنے گی. وہ فارسی کا بہت مشہور شعر ہے، نام نیک رفتگاں ضائع مکن، تاب امانت نام نیکت برقرار. تم اگر اپنے بزرگوں کے نام کی حفاظت کرو گے، آنے والی نسلیں تمہارے نام کی حفاظت کرے گی. تم نے بزرگوں کو بھلا دیا، آنے والی نسلیں تم کو کچل کر آگے چلی جائیں. آج کے لیے یہی. اور یہ بیٹھے بیٹھے ابھی پتا ہو گیا، میں نے سوچا کہ جو کچھ لکھا تھا وہ تو یہ ہو گیا، پوسٹ کر دیا، وہ پبلک کی چیز ہو گئی. لیکن یہاں کے لیے مجھے کچھ کہنا چاہیے، تو پتہ نہیں ہوا بھی ہے یا نہیں، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ اشک کے آنکھوں سے گرے الفاظ گیلے ہو گئے. اشک کے آنکھوں سے گرے الفاظ گیلے ہو گئے، صفحے کرتاس میں ایک دم نمی سی آ گئی. اشک کے آنکھوں سے گرے الفاظ گیلے ہو گئے، صفحے کرتاس میں ایک دم نمی سی آ گئی. تعزیت کے طور پہ کیسے کہوں، کیا کیا کہوں، تعزیت کے طور پہ کیسے کہوں، کیا کیا کہوں. ڈاکٹر شبیر کی رحلت قیامت ڈھا گئی. ڈاکٹر شبیر کی رحلت قیامت ڈھا گئی. اور کسی کا بہت مشہور شعر، اسی پر میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں. اور کسی کو ناگوار گزری ہو تو خدا کے واسطے بخش دیجیے گا. سماج سے جو کچھ ملتا ہے وہی انشاءاللہ عرض لوٹاتا ہے. وہ دنیا نے تجربات حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے. نام کے ایک شاعر کا ایک شعر بہت مشہور تھی، اور میرے کانوں سے وہ ٹکرائی ہوئی آواز ابھی یاد آتی ہے، جس کو میں اس موقع سے اگر استعمال کروں تو بے جانا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ خاک میں ڈھونڈتے ہیں سب سونا، خاک میں ڈھونڈتے ہیں سب سونا، ہم نے سونا سے دودھ خاک کیا. محترم ارشاد آرزو صاحب کی بصیرت افروز و تقویم تھی. جو ان کا مشاہدہ تھا، جو کیفیت انہوں نے معاشرے میں دیکھی، اور خاص طور پر ادبی حلقوں سے جو انہوں نے حاصل کیا، جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، دراصل اسی کی عکاسی کر رہے تھے. ہمارے ہاں یہی تو ہے، کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں. اور اس کے اندر بھی ایک قسم کی انا ہے. جیسا بھی فرمایا ہے نا، میں نے اتنی غزلیں پڑھی، اتنا سب کچھ کر لیا. دراصل وہ پڑھی نہیں، وہ انا ہوتی